वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विजय लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 27 फरवरी 2022 को विजय लक्ष्मी फाउंडेशन ने फिर एक बार एक वर्चुअल सेशन, एक लाइव वेबिनार रखा है एक गेस्ट स्पीकर के साथ। ये जो पर्सनालिटी है ये हमें जैसे कि हम हमेशा काम करते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, तो एक बहुत ही बेसिक सी ट्रेनिंग जरूरी होती है जहां पर हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। तो इसके लिए ही सर का बहुत अच्छा काम रहा है और सर ने बहुत लोगों से जुड़ने की कोशिश की है। इस जर्नी में उन्होंने बहुत लोगों को साथ लिया है और वो हमेशा 100% एफर्ट देते हैं इस चीज में कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बेसिक बातें पहुंचाई जाए कि किस तरह से वो जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं, किस तरह से वो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और किस तरह से दे कैन मेक देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी वेरी इफेक्टिव, वेरी इन्फ्लुएंशियल। So, let me introduce you to the guest we have today with us. The guest speaker with us is Professor Manish Nair, sir. His area of excellence has been life coaching and corporate training and HR. He has been in numerous capacities in various institutions. He has been senior soft skill trainer at JD College of Engineering and Management, Nagpur. He has also been in the capacity of personality development trainer with Jet King, director training at Urban Space Infra Private Limited, senior manager at FAIPL, also at managing levels in Juventus Healthcare Limited, Novartis, and Dr. Reddy's Lab. He is a PGDMA, that is postgraduate diploma holder in marketing and management. So let's welcome him. We welcome you, sir, with us today in this live webinar session. And I'm very happy, more than happy, to tell you all that his topic today is knowing is growing. Let's make it a second nature. So over to you, sir. Thank you so much, ma'am. Pleasure. Very good morning to all of you all. Before starting, let me clarify that knowing is growing is a thought process which took enough time. I was wondering to get to know my audiences. I came to know that there would be a mixed audience in the age group of, let's say, 18 to around 30. And expectedly, I would like to have my orientation, my presentation very specific to the audience and very specific to the need. But there is a punchline. As soon as I coined this knowing is growing, I came up with this punchline. It is like, let's get started and let's make this as a second nature. So I'll be very specific on talking about second nature, which is also called as habit, and very specific to the audiences that I know of on this platform. So it is not related only to female audiences. It will also be very specific to the male audiences. And now, since we are not talking about equality, we are not talking about feminism, we are not talking alone about women empowerment, because I'm very sure women empowerment has taken its place now, and it is only going to grow substantially more than ever thought of. So, keeping all these things in mind, I have certain observations in my teaching, in my training, during my academic association with various students, institutions, teachers, and the life that has maybe something to offer to every one of us. It is never in isolation that only students have a problem, their parents also have a problem. And it is not that the problem we are going to discuss. We'll be discussing few observations, minute observations, and what could be the correctable measures that we can do it. I always believe that regression is something which should not be there in anybody's dictionary. But certainly there should be one thing, and that is course correction. So if you are able to maybe follow, understand, and take in help of whatever that I'm saying, it is purely an observation of my stay on this earth, maybe for last 25 years as a conscious being into maybe different industries, different people, different environment, and different experiences. So I'm going to amalgamate everything and maybe put it across in the most lucid way.
possibly. So let's begin. So as I was telling you all that knowing is growing. So most important is knowing is growing comes from within. Motivation and inspirations are two very good word. People think about motivation, they always look out. So it's outside in. And when you talk about inspiration, it is always within from, or maybe inside outside, inside out. So knowing is growing has more to do with your inside out rather than the outside world. So if knowing means what to know, few things that you are able to know it in time, you are able to convert it into tangible values, maybe tangible conversions of certain achievements, progressions, development, construction in life. That is perhaps what we are looking at with this particular deliberation one. And if you are able to know yourself, I am very sure you are able to grow yourself. सो पूरी कहानी ये है कि हम जितना अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, उतना ज्यादा हम अपने व्यक्ति विशेष को अच्छा बनाएंगे, प्रबल बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे. तो ये ग्रोथ की स्टोरी है जो मैं आज आप तक पहुंचाने वाला हूं. ये अपने कॉन्शियसनेस की स्टोरी है जो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं. तो कुल मिलाकर कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा. शुरू करते हैं. सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हाल ही में, अब शायद 6 महीना पहले, एक ऐसा डेटा रिलीज हुआ था जिस डेटा में शॉकिंगली पुणे और नासिक के लोग पाए गए थे कि वो सबसे ज्यादा यूट्यूब देखते हैं. और यूट्यूब देखने में वो क्या देख रहे हैं वो थोड़ी सी खलल की बात है. द मोस्ट शॉकिंग outcome of that data was that people are watching YouTube for the wrong reason. See, people are minting money. People are minting money from what you are seeing. आप जो देख रहे हैं उससे लोग पैसा बना रहे हैं, और ये अमूमन वो लोग हैं जिन्होंने YouTube का क्रिएशन किया था फॉर द रॉन्ग रीजन. YouTube ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम सब जानते हैं, इसमें से बहुत लोगों को ज्ञान मिलता है, बहुत लोगों को अच्छी बातें मिलती है, लोगों का विकास हुआ है, लोगों ने स्किल्स बनाए हैं और लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं अपने अपने चैनल से. वहां तक अच्छा है. लेकिन जहां हम इंटरनेट, जो कि हमारे सबसे बड़े, मतलब आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विकास हम कह सकते हैं इंटरनेट, ये इंटरनेट से हमें फायदा होना चाहिए, ना कि हम किसी और का फायदा करें फॉर द रॉन्ग रीजन. अब ये जो रीजन है ये मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूं, मैं पूरी बातें इस मंच पर नहीं कह सकता हूं, इसीलिए क्योंकि ये रॉन्ग रीजन जो था वो अपने यूथ को हिट करता है, और हमारे जितने भी यूथ है वो शायद कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप होते जा रहे हैं. YouTube for the wrong reason is all those things which are now catching up with other social medias. आजकल मैं अगर सोशल मीडिया में, अगर फेसबुक में जाऊं या इंस्टाग्राम में जाऊं, तो कुछ ऐसे सेंसर्ड वर्जन भी दिखाई देने लगे हैं जो कि हमारे लिए बहुत आसानी से हमें ट्रैप यानी जाल फैला देते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं. अब समझ लीजिए कि अगर ये एक बुरी आदत है, हम इसे सेकंड नेचर बना रहे हैं, तो हमें इससे जल्दी से जल्दी दूर होना पड़ेगा. अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि वी एस्पायर टू बी, मे बी वी एम द फॉरेनर्स, वी वुड लाइक टू बी कॉल्ड आवरसेल्फ एज मॉडर्न सोसाइटी. इसलिए हमने पिज्जास को बहुत आसानी से ले लिया, हमने लिव इन रिलेशनशिप को बहुत आसानी से ले लिया, लेकिन ये अभी भी हमारे घर के अंदर की इंडोर टॉक नहीं है, ये क्लोज डोर टॉक ही है ये. और यहाँ पर शामिल होने वाले वही लोग हैं जो इसको कमिट करते हैं. तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो जो यूट्यूब से, अब और जो बाकी सोशल मीडिया से, या फिर किसी भी मीडिया से फॉर दैट मैटर, सोशल मीडिया ही क्यों, न्यूज चैनल्स भी है, जो हमें दिखाया जाता है हम उसको बहुत आसानी से कंज्यूम करते हैं. हालांकि वहां पर जितने बच्चे हैं वो 14 साल से लेकर शायद 21-22 साल तक कहीं ना कहीं समर जॉब्स कर रहे हैं, विंटर जॉब्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू अर्न व्हाइल दे आर लर्निंग. तो हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड है, जिस तरह से आपको भूख लगती है, जिस तरह से आपको प्यास लगती है, आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप सारा दिन पानी नहीं पी सकते, आप सारा दिन कुछ ऐसा पेय पदार्थ नहीं पी सकते हैं जो सिर्फ आपको तकलीफ ही दे. आप सारा दिन खा नहीं सकते. तो ये सब चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बायोलॉजिकल नीड है आपकी, और वो बायोलॉजिकल नीड को आप इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास में आप पूरे ड्रेन हो जा रहे हैं.
आपके पास और किसी कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिविज्म में आपके लिए सोच नहीं है, करने के लिए क्षमता नहीं है, और आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जो मैं अपने बच्चों में भी देखता हूँ, और जब मैं किसी कॉरिडोर से पास कर रहा हूँ या फिर किसी एली में शांत गुजर रहा हूँगा या किसी से बात कर रहा हूँ, तो वो बातें सुनाई देती है। वो टिल्टेड वीडियो का विजन दिखाई देता है, वो एंगल्ड हैंडसेट दिखाई देता है, जो शायद कहीं ना कहीं गलत क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहा है। और मान लीजिए सबसे पहले तो ये बोल दूं कि वॉट एवर दैट यू आर कंज्यूमिंग इज ऑल्सो कंज्यूमिंग यू। मीनिंग, आप जिस तरह से जो कंज्यूम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप अगर गलत चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो यकीनन वो गलत चीज, वो नेगेटिविटी, वो जितनी भी पुल डाउन क्या कहते हैं इफेक्ट है, वो आपको भी कहीं ना कहीं नीचे ले जा रहा है। आप स्टेगनेंट है या नीचे जा रहे हैं, आप ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव तो नहीं है, आप कंस्ट्रक्टिव तो नहीं है, आप पॉजिटिव तो नहीं है। तो जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है मेरा वो ये है, और वो यूथ को अपील है जो भी इसे देख रहा है, कि आप करके देख सकते हैं। अगर कोई बात इस दुनिया में सही और गलत नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि आप ये करके देख सकते हैं, लेकिन ये आपको कहाँ लेके जा रहा है। और अगर आप किसी को एप कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक बार समझ के देखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। कोई भी रुक नहीं रहा है। आज अमेरिका में 25% जॉब्स अभी भी वो आईटी इंडस्ट्री के नहीं ले रहे हैं, वहां के खुद के लोग। और हम हिंदुस्तानी अगर वो जॉब लेते हैं, तो हमें खुशी इस बात की होती है कि हम 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ। बट किसी को ये नहीं मालूम है कि 12 घंटे काम करते हैं हम सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, और उसमें भी प्रोडक्टिव काम कितना करते हैं, ये आप और आपके लिए और मेरे लिए है ये सवालों का जवाब देना। बट अंदर झांक कर खुद देखिएगा कि 12 into 5 वो लोग 5 days a week काम करते हैं, तो वो 60 hours काम करते हैं। और जब उनके पास वो 2 दिन होते हैं, तो वो 2 दिन उनके बेहोशी के होते हैं, क्योंकि आदमी वर्क लाइफ बैलेंस कभी नहीं पा सकता अगर वो 12 घंटा काम कर रहा है। हम लोग खुश हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, और हम सिर्फ 8 घंटा काम करते हैं। हमारे पास में 8 घंटा सोने के लिए है, और 8 घंटा वो करने के लिए जो हम बहुत अच्छे से अपने लिए कुछ कर गुजर कर बड़ा बनने की कगार पे चल सकते हैं। बट वो 8 घंटे यूटिलाइज होंगे तो अच्छा है, वो यूज होंगे फॉर द रॉन्ग रीजन। फॉर एग्जाम्पल, the negativity, the wrong consumption in YouTube, or the wrong consumption in the social media, I think that will not take you ahead. That will only maybe stagnate you or pull you down. तो मेरा बहुत क्लियर है कि यदि 8 8 घंटे में 33% आपके पास फिर भी टाइम है, यानी वो 8 घंटे जो आप काम या पढ़ाई में नहीं लगा रहे हैं, जो आप कॉलेज से जाकर वापस आ रहे हैं, आपके सोने का टाइम कभी 8 घंटे नहीं होता है। तो फिर आपके वो 8 घंटे जो 33% ऑफ योर टोटल डे टाइम है और टोटल लाइफ टाइम है, उसे आप सही दिशा में लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक सेकेंड नेचर की बात बता रहा हूं, जो कि डेटा बोलते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जिसे कंज्यूम कर रहा है वो बोलता है, और हमारे यूथ जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनके विषय में बोल रहा हूँ, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। आप इससे सुधार सकते हैं। इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि नेगेटिविटी में आपको अगर नहीं रहना है, तो पहले नेगेटिविटी में डूब कर देख लो एक बार। मेरा प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग है। मैं बहुत लोगों के साथ में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की जब बात करता हूं, तो आसान नहीं होता है समझना और करना, क्योंकि करनी और कथनी में फर्क होता है। जब आप करते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि नेगेटिविटी से हासिल क्या। करके देख लो एक बार, हासिल जो होता है उससे आपका फायदा होगा तो आप करते रहिए, सिंपल है। वरना लाइफ आपकी है। देखिए, मैं उस जनरेशन से बात कर रहा हूं जो बड़े अधीर है, इम्पेशेंट है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, एडिक्टेड है। एडिक्शन में सबसे बड़ा तो फोन एडिक्शन है। इसके अलावा कैजुअल है, घर में दे आर बिजी, दे से, बट दे आर लेजी। सो लेजी इज बिजी इज व्हाट इज actually it has become a way of life for them. इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसके अलावा लैक ऑफ करियर फोकस है, इसके अलावा बहुत सारे रेडीनेस है जो हम अपने लिए कर सकते हैं। तो ये सब यूथ की आज की फाइंडिंग्स है। बट मेरा ये मानना है कि इसके ट्रैप में फंसने से पहले आप इसके पूरे फायदे और नुकसान देखकर आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपको इसमें मजा आ रहा है, क्योंकि योर लाइफ आपके लिए कुछ चीज है जो कि
जैसे कहते हैं ना, प्रकृति बदलाव देती है, लॉ ऑफ इम्परमानेंस ऑफ नेचर कहता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। तो जब आपको मालूम है कि जो चीज आप कर रहे हैं वो परमानेंस नहीं है, तो उसको आप बाहर निकलने के तरीके भी निकालिए। और वो एक तरीका ये हो सकता है कि जब आप अपने आप को ग्लोब में देखते हैं, बड़े नक्शे में देखते हैं, तो बड़ा चित्र अपना अपना चित्र बड़ा बनाइए, एक बड़ा विस्टा विजन देखिए, और उसमें आप मैप करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके लिए ये क्षणिक खुशी जो है, प्लेजर, वो आपको बिगाड़ेगा। बहुत आसानी से ये ट्रैप आप करते रहते हो और ट्रैप में फंसते जाते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपके लिए, कहते हैं ना, हैबिट्स डाई हार्ड। तो अच्छी आदतें लगाने से लगती है और उसे समय लगता है, बुरी आदतों में आप फंसते चले जाओगे तो इसके लिए शायद बहुत मुश्किल होता है एक समय पे हम अपने अपने पाथ को रिवर्स करें या यू टर्न लेके आए, क्योंकि आपके प्रोडक्टिव ईयर्स जो सीखने का समय है, वो तो सिर्फ वो 20 साल से जो आप सीख रहे हैं, यानी पहली क्लास से लेके 20 साल के जब होते हैं, तब मेरे ख्याल से आपके ग्रेजुएशन का टाइम होता रहता है। लेकिन एक्चुअली आप कॉन्शियस तभी होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपने एक्चुअली क्या सीखना है और लाइफ में बनना क्या है। तो वो फोकस आपका बने रहे, इसीलिए मैं वो आपको ट्रैप से सिर्फ जागरूकता दे रहा हूं, और चाह रहा हूं कि आप वो ट्रैप में ना फंसे, पहला। दूसरा, हम सबको अच्छे से पता है कि हमारे पास कोई ना कोई टैलेंट है। लोग कहते हैं कि उनके पास टैलेंट नहीं है, और ये टैलेंट नहीं है, ये तो वही जवाब दे कि उनके पास टैलेंट क्या नहीं है। लेकिन हम किसी ना किसी चीज में तो अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा शायद गाना गा लेते हैं, अच्छा डांस कर लेते हैं, क्योंकि टिकटॉक वीडियोस और आपके इंस्टाग्राम जो कि बेसिक क्या कहते हैं आप, इंटरटेनमेंट के एलिमेंट होते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे मैं कई जगह पे लोगों को क्रिएटिविटी भी करते हुए देखता हूँ। और लोग होते हैं, अब कई प्रकार के लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिनमें अलग अलग खूबी होती है, तो आपको वो खूबी पहचानना होगा। हो सकता है कि वो आपकी गॉड्स गिफ्ट हो। तो एक होता है गॉड्स गिफ्ट, और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड स्किल्स, यानी स्किल्स को एक्वायर करना। तो आपको किसी ने रोका नहीं है, यदि आप अच्छा गाते हैं तो आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने हुनर को और अच्छा बना सकते हैं, और उसे अच्छा पेश कर सकते हैं, या उसको कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको प्रोग्रेसिव बनना है, तो मेरे ख्याल से हर वो स्किल सेट्स जो लाइफ स्किल में आता है, वो आपको समझना भी होगा, सीखना भी होगा, और आगे बढ़ना भी होगा। तो मेरा ये मानना है कि पैसा कमाने के लिए आपको दिशा लगेगी, और वो दिशा आपको तय करनी पड़ेगी जब आप टीनेजर होते हैं तब, या वो 7 साल का बच्चा जो देख के समझ जाता है कि इसके घर में कितने नौकर है, किसका क्या काम है, उसके माता पिता क्या करते हैं, और उसे क्या करना है। ये 7 साल का बच्चा तभी समझ जाता है। लेकिन जो बच्चे 7 साल में नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए रॉबर्ट कियोसाकी का 8th वंडर वो ये है कि प्रैक्टिस कीजिए, एक स्किल को पकड़ के। गिटार हाथ में दिखता है तो गिटार बजाइए, आपको लगता है कि आप डांस अच्छा करते हैं तो डांस कीजिए, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं क्लोजली, वो या तो अच्छे एंकर है, या अच्छे मास्टर ऑफ सेरेमनी है, या फिर अच्छे टिकटॉकर है, अच्छे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है ना, सोशल इन्फ्लुएंसर। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका हुनर है, लेकिन उसे पहचानिए, पैसे की तरफ ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और फिर आगे बढ़िए। छठा, आप जो भी करियर चूज कर रहे हैं, आप ये सोच के कीजिएगा कि जो आप लाइफ के आखिरी सांस तक करना चाहते हैं, क्या वो आप अभी से कर रहे हैं या नहीं। और यदि एक जापान एक बहुत अच्छा कंट्री है, और वो एकमात्र कंट्री है जहां पर आपको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन वहां दागे गए थे, है ना, एटॉमिक बम डाले गए थे। लेकिन वो अकेला देश है जो 70 साल में प्रगति किया, और जो वैल्यूज में बढ़ा, वो शायद कोई और दूसरा देश नहीं हो सकता। वहां पर एक टेक्निक है जो वो लोग करते हैं, काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक और कुछ नहीं है, बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में, वो लोग इतने छोटे गोल्स में कर लेते हैं कि वो खुद शर्मसार हो जाते हैं ये सोचकर कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में पढ़ाई का फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने छोटे छोटे गोल पे ध्यान देना चाहिए कि मैं आज अपने टेबल तक जाऊंगा, अपने टेबल पे जाकर अपने टेबल को देखूंगा, अपने टेबल पे देखकर उसमें जो कचरा है उसे साफ करूंगा, उसमें से जो किताब मेरे को समझ में आती है वो किताब मैं खोलूंगा, उस किताब में मैं कम से कम 2 लाइन तो पढ़ूंगा, और 2 लाइन में अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। ये काइजन है। ये वो लोग कर रहे हैं जो सबसे समृद्ध देश है आज, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी,
और मेरे को बिल्कुल संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में ये यूएस को भी पार करेगा। बट ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये वैल्यू वाले लोग हैं। ये अमेरिका जैसे नहीं है कि दूसरों के ऊपर में उनको नीचे गिरा के अपने आप को ऊपर बढ़ाए। ये वो लोग है नहीं, इनकी मानसिकता बहुत अलग है। इसलिए कभी मौका पड़े तो जापानीज या जापान जाके उन लोगों से मिलिएगा। चाइना से बड़े अलग लोग होते हैं, चाइनीज से बड़े अलग लोग होते हैं और सीखने योग्य बहुत होते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण जो काइजन का था वो कोई भी कर सकता है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि नेचर, सेकेंड नेचर फॉर्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मेरी दिशा सिर्फ वहीं पर है। चलिए मैं आपको सातवीं चीज के बारे में बताता हूं। हम सब ने ये जान गए, हम सब ये जानते हैं और ये अच्छे से मानते हैं। अभी तो हमने पहचान लिया विथ पेंडेमिक इफेक्ट कि फैमिली से बढ़कर कोई नहीं होता है। फैमिली इज अबव ऑल। और ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने शायद पेंडेमिक को ठीक से नहीं गुजारा है। आपने वर्चुअल वर्ल्ड पे ही अपनी दुनिया निकाली है। आपको अच्छे से मालूम होगा कि 20 साल जिनके साथ आप रहते हैं, ये लड़का और लड़की दोनों के विषय में कह रहा हूं, और अचानक से कोई आपको पसंद आ जाए तो आप सब रिलेशन छोड़ के उनके साथ चले जाते हैं। ये सही नहीं है बॉस। जो सही है वो ये है कि अल्टीमेटली आप कितने उदाहरण ले सकते हैं जहां पर आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आपकी हार हुई होंगी, आपको पेन हुआ होगा, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी होगी, आप रो रहे होंगे, आप बहुत बहुत जगह पे शायद लो हो गए होंगे लाइफ में। लेकिन किसने संभाला सबसे पहले? वही पेरेंट्स थे, वही भाई था, वही बहन थी, वही रिलेटिव थे, वही इनर सर्कल था आपका। तो इनर सर्कल को पहचानिए। अगर पहचान सकते हैं तो ये मान लीजिए कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। और यदि वो कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं। आप इतने बड़े हुए ही नहीं है। एक कॉरिडोर से जब मैं गुजर रहा था और मेरी क्लास खत्म हुई थी, तब पीछे से एक बच्चा आया और वो बच्चा एक ग्रुप को ज्वाइन करने गया। उस बच्चे को जब ज्वाइन करते हुए मैंने देखा तो खुशी हुई कि ये अपने दोस्तों से मिल रहा है। लेकिन मेरी अचरज ये इस बात से भी थी कि बाकी के बच्चे सेम क्लास में होना चाहिए, बाहर कैसे है? तो आजकल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने लगे हैं, ये भी थे। गुजरते हुए जब मैं कॉरिडोर से आगे निकला तो मैंने उनकी गालियां सुनी, और गालियां सुन के मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो गालियों में कहीं ना कहीं ये भी था कि अरे किसका क्लास कर रहा था तू, क्या जरूरत थी, हम तो तेरा वेट कर रहे थे। और उन गालियों में जब कुछ गालियां ऐसी होती है जो आपको आपके मतलब क्या कहते हैं ना, कांटे दे जाती है। तो वापस गया मैं उस ग्रुप के पास, मैंने बोला एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आप लोग बहुत लकी है। उसने ये बात तो भांप ली थी कि ये सर आए हैं और मैं उनको पढ़ाता नहीं हूँ। ये क्लियर कर लूं कि ये गाली ना तो मेरे लिए थी, लेकिन जिस किसी के लिए भी थी ये बुरी थी। मैंने कहा कि आप लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं, मैंने आपकी सब बात सुन ली, और अनफॉर्चुनेटली आपने इतने जोर से कहा कि ये बात सुननी मिली। वो बच्चे ने जो भी गाली दिया था वो कॉन्शियस हो गया था, लेकिन अब उसको लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, कुछ डांटूंगा या फिर कुछ फटकार लगाऊंगा, या हो सकता है उसको कहीं लेके जाऊंगा और कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कि आप लोग लकी है क्योंकि आपको जनरेशन जो पढ़ा रही है वो हमारी जैसी है। आप जो जनरेशन में है, जो गाली गलौच बिंदास देते हैं, एनवायरनमेंट का पता भी नहीं रहता है आपको और आप क्या कर रहे हैं आपको परवाह ही नहीं रहती, इतने कैजुअल रहते हैं। आपको पढ़ाने वाला आप में से कोई एक रहेगा, तो आपके बच्चे तो मेरे ख्याल से पैदा होते ही गाली देंगे। तैयार रहो, देखो क्या कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है बॉस। अगर कोलगेट में नमक है आज, तो यही कोलगेट है जो 100 साल पहले बोल के गया था कि नमक से कुछ नहीं होता, वो आपके दांत खराब करेगा। और हमने हमारे दादी और नानी को लाल दंत मंजन और काले दंत मंजन में दांत घसते हुए देखा है। उनकी दांतों की शाइन वैसी ही थी, और मैंने कभी फाउल स्मेल नहीं, कोई भी एल्डरली मेंबर से कोई फाउल स्मेल नहीं कभी सुना होगा। ये कंप्लेंट ही नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि हम खाते हैं कुछ ऐसा है, और हमारे कोलगेट में नमक अभी आने लगा। क्यों आने लगा है? क्योंकि यही कोलगेट है जो समझता है कि ये जो वेद है, पुरानाज है, माइथोलॉजी है जो इंडिया की है, जो इस्कॉन में बहुत ज्यादा बोली जाती है, और कोई चीज गलत और सही नहीं होती है। आपको सिर्फ समझना होता है कि आपके लिए क्या है, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। इफ यू आर कंज्यूमिंग गुड एंड इफ इट इज मेकिंग यू गुड, आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट थिंग इन लाइफ। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ये प्रमोशन है, प्रोपोगंडा है। न्यूज देखना मैं बहुत पहले से बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर भी कोलगेट जैसे लोग हैं, है ना। लॉन्ग है, क्लोजअप में लॉन्ग है, इसीलिए उसका नाम भी क्लोजअप रखा है। लॉन्ग खा लो तो वैसे ही क्लोज आ जाओगे आप, तो उसको टूथपेस्ट की क्या जरूरत है बताइए। कितने लोग हैं ये जानते हैं कि सोने से पहले
ओरल हाइजीन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सारा दिन जो खाया है तो कम से कम ब्रश करके सोना चाहिए। और डेंटिस्ट खुद कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही आपने बगैर टूथपेस्ट लिए एक ब्रश ऐसे ही घुमा लेना चाहिए आपने, फिर पानी पीना चाहिए। क्योंकि वो जो रात को सोते हैं आप और सुबह जो पहला सेवन करते हैं जो कि पीएच 7 रहता है, न्यूट्रल पीएच वाटर, उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी एसिडिटी लेवल भी कम होगी। ये एक है। दूसरा, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो आपके ओरल सलाइवा में होते हैं, वो यदि पहुंचे तो वो और नॉर्मलाइज करते हैं। साइंटिफिक स्टडी है, गूगल करके आप सब देख सकते हैं। मैं कोई आपको अनोखी बात नहीं बता रहा हूं, मेरे ऑब्जर्वेशन की बात बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। फिर भी हम करते वही है जो ट्रैप है, जो बैड हैबिट है। हैबिट्स डाई हार्ड। ओके, 8th पॉइंट, रिस्पेक्ट एवरीवन। मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये पिक्चर बहुत हिट हुई थी। सर्किट यानी अरशद वारसी और संजय दत्त दोनों बैठे थे और दोनों से सवाल पूछा गया। पहले पूछा गया संजय दत्त से कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अभी सक्सेस आपने देखी है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं, अब डोंट टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। और उससे बड़ी बात, अरशद वारसी जो कि फैंटास्टिक एक्टर है, वो कह चुके, वो कहते हैं कि आपको कैसे लग रहा है। तो कहते हैं कि मैं सीढ़ियों में अभी ऊपर चढ़ रहा हूं, हालांकि मैंने भी बहुत काम किया है। जब सीढ़ियों में ऊपर चढ़ रहा हूं तो मैं सबसे हंसते खेलते और रिस्पेक्ट अदब कायदे के साथ मिलते हुए चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो सीढ़ी से जब घसरूं तो उन्हीं लोगों का सामना होगा, तो उन्होंने मेरे को अच्छे से रिसीव करना चाहिए। पता नहीं आपका, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं चाहे जेडी कॉलेज में था, चाहे जेट किंग में था, चाहे अब मैं रायसोनी ग्रुप में पढ़ाता हूं, मैं जहां भी पढ़ाता हूं, जहां भी जाता हूं, चाहे वो साई खेड़ा हो या फिर श्रद्धा हाउस हो या फिर श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स हो, उस गार्ड को नमस्ते किए बगैर मैं कभी नहीं चढ़ता। और मेरी हर वो बात जो मैं अपने गाड़ी के विषय में, पार्किंग के विषय में कुछ भी बता सकता हूं तो उसे सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि उसे पसंद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर करे मनीष नायर सर के साथ। मेरे को पसंद है कि वो क्लोजनेस मैं उनके साथ रखूं। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं है साहब। आपने एक बार फल ले आके दिया, वो फल खाएगा। कभी आपको लगा है कि एक समोसा खिलाना है तो आप खिला सकते हैं। बस प्रेम, संबंध और रिस्पेक्ट, ये आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, वरना ये बातें हैं। और जिस किसी कॉलेज में मैंने काम किया होगा, जहां भी काम किया होगा, मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि लास्ट के दो ऐसे रेजिग्नेशन जो मैंने दिए थे, तो मेरा ऑफिस बॉय तक रोया था, जिसका मेरे को आज भी मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं। क्योंकि इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट अगर आप दोगे ना, नेटवर्किंग का एक ही एक परिभाषा है। आप हमेशा सोचते हैं कि नेटवर्किंग में मेरा फायदा होना चाहिए, मैं लोगों से जुड़ूं तो लोग मेरा फायदा करना चाहिए। गलत। नेटवर्किंग का मतलब यह है कि आप कितना फायदा करा सकते हैं लोगों का, ताकि आपको एक कॉल करने के बाद में कोई ना बोले। मैं खुशनसीब हूं कि मेरे ऐसे बहुत सारे संबंध है जहां पर मैंने अगर उनकी हेल्प की है तो मेरा फोन पे काम हो जाता है। रिस्पेक्ट। नंबर 9th, नेवर टेल एनीवन योर सीक्रेट्स। क्यों बताते हो कि आप क्या करने वाले हो? आप करो। कंस्ट्रक्शन, ये इसकी आवाज नहीं होती है, डिस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी आवाज होती है। तो ऐसा कहते हैं, अगर 3 चीज आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसमें से आपकी एक पगार होती है, आपकी एज होती है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी वुमेन, या बट एक डेफिनेटली होती है कि आपका सीक्रेट आपका रहना चाहिए। फिर जिसे आप अपना हमदम, हमसाया, हम प्याला जिसे कहते हैं, वो एक ही होता है, उसे उसे आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कोई एक तो होना जो श्रद्धा का पात्र हो, जिसे आप पूछते हैं, जिसे आप मानते हैं, जो एकमेव है आपका, आपके दिल के करीब, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी सब हा दुनिया है। 10वां, आप अपने माता पिता से किस तरह से पेश आते हैं मालूम नहीं है, लेकिन अभी एक उदाहरण दे चुका हूं कि आपका जनरेशन अच्छा है क्योंकि आपको हमारे जैसे टीचर्स मिले हैं, ट्रेनर्स मिले हैं। आप जिस तरह से ट्रेनिंग देंगे तो पता नहीं क्या देंगे, लेकिन अपने माता पिता का वो अल्टीमेट है। भगवान देखा नहीं है, शैतान से सब डरते हैं, लेकिन जो भगवान को आप देखते हैं उनकी पूजा नहीं करते आप। आपने सिंपल एक ही काम करना है, अपने माँ बाप को कम से कम उतना तो रिस्पेक्ट देना है, पोलाइटली बात करना है, रिवोल्ट नहीं करना।
और कुछ कर दिया तो उसको गिनती में नहीं लाना है, क्योंकि आप भी कभी माँ बाप बनेंगे, तो क्या करोगे आप। और उससे बड़ी बात ये कहता हूं कि अगर रिलेशनशिप वैसे रही नहीं तो आपका बच्चा क्या सीख रहा है और वो क्या सीख के आपके साथ क्या करेगा, आप जो कर रहे हैं आपके माँ बाप के साथ वही करेगा, तो तैयार रहिए उसके लिए। रिस्पेक्ट एंड स्पीक पोलाइटली। नंबर 11, लोग कहते हैं कि किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा शाहरुख खान नहीं हो सकता, दूसरा अमिताभ नहीं हो सकता, दूसरा इलोन मास्क भी नहीं हो सकता है, दूसरा जेफ बीसोस भी नहीं हो सकता है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट सोचिए, क्या 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 व्यक्ति है। नीड आइडेंटिफाई करो इलोन मास्क की तरह और सोसाइटी में दे दो, आप रिच हो जाओगे। या फिर नीड क्रिएट करो और सोसाइटी पे दे दो, ई कॉमर्स जो जेफ बीसोस ने दिया है, आप रईस हो जाओगे। दो ही जगह तो काम करना है आपको। तो यूथ का पूरा एनर्जी, इंथुजियाज्म, एक्सुबरेंस कहां जाना चाहिए? दो जगह जाना चाहिए। चाहे फिर आप करियर बना रहे हैं या एंटरप्रेन्योरल आइडिया ले रहे हैं, दो जगह सोचिए। शार्क टैंक भी यही दिखाता है। आप टेक अवेज पे ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा प्रोसेस क्या है। रिजल्ट पे ध्यान देंगे तो प्रोसेस जोड़िएगा, आपको प्रोसेस या अटेंशन टू डिटेल, ये स्किल, बहुत बड़ी स्किल समझ में आ जाएगा। किसी को कॉपी मत कीजिए, और ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी और से मैच होनी चाहिए, क्योंकि आप यूनिक है साहब, आप अलग है इसलिए यूनिक है। 12वां, आप अपना समय जो गया ना, चलिए मैं एक चीज तो कह लेता हूं कि साल 2 साल अगर आपने ड्रॉप ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इंटरव्यू में क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी, आपको आपका करियर बनाना मेरी जिम्मेदारी। लेकिन साल 2 साल यदि आपने गैप लिया और कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। साल 2 साल लेजी इज बिजी एंड बिजी इज लेजी, इस कॉन्सेप्ट पे रहेंगे आप और कुछ नहीं करेंगे तो शायद आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप खुद ही अपने आर्ग्यूमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। 13th पॉइंट है, मेरे पास 20 पॉइंट है तो 13 चल रहा है, जल्दी खत्म करता हूं। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदार कब बनोगे? आप जिम्मेदार कब बनोगे? जिम्मेदारियां लेकर बनोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं सब कुछ होने के बाद, सर मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, मेरे घर की लाइट्स नहीं थी, सर मेरा सबमिशन लेट हुआ। पहले क्यों नहीं बोला आपने? पहले क्यों नहीं बोला आपने? और पहले अगर बोल के जाते हैं कि सर मैं अटेंडेंस के लिए आऊंगा आपके पास, सीखने नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा ज्ञान आपसे ज्यादा है, ऐसा बोलने वाला लड़का नहीं मिला आज तक कोई। मजबूरी में पढ़ने वाले सब मिले और सब फोर्सफुल कंडीशन में आते हैं, इसीलिए कुछ सीख के नहीं जाते हैं, टाइम पास करके जाते हैं। इसलिए मेरा पुराना पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मैं क्लब करके बोलता हूं, समय के साथ जिम्मेदारी लेना सीखिए, जिम्मेदारी लीजिए। लीडरशिप की भावना सब रखते हैं, सबको लीडर बनना है, अरे पहले जिम्मेदारी तो लीजिए। जिम्मेदारी लेकर पहले इनिशिएटिव तो लीजिए। लीडरशिप का पहला प्री रिक्विजिट फंडामेंटल स्किल होता है टेकिंग इनिशिएटिव। कल फोरम के इंटरव्यूज थे, मेरे को बुलाया गया फर्स्ट ईयर के, और जो सवाल मैंने पूछे तो पसीने आते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने कब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और जिम्मेदारी चाहिए सबको, हाँ जिम्मेदार बनना है, जिम्मेदारी नहीं लेना है, लेकिन लीजिए, किसने रोका है। और दूसरा 14वां पॉइंट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। गलती हुई तो कबूल करो, क्योंकि कबूल करने से एक कहावत है ना अंग्रेजी में, टू err इज ह्यूमन, यानी आप और मैं कोई भी गलती कर सकता है। स्टूडेंट तो बहुत सारा कर सकते हैं क्योंकि उनका हक है, वो तो पैसे देके पढ़ रहे हैं तो उनका हक है, वो बिल्कुल बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, अपनी आवाज ऊंची करके बोल सकते हैं कि टू err इज अ ह्यूमन एंड वी आर स्टूडेंट्स सो वी कैन err, वी हैव अ लार्जर स्कोप टू err बिकॉज वी हैवंट लर्न एनीथिंग येट। 15वां पॉइंट बोल रहा हूं, आप बहुत आसान है बोलना कि नेवर गिव अप, बट यदि आपका एज 18 और 30 है तो आप मान लीजिए मेरे एज में आते आते आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। सो टेक रिस्क, आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। फैंटास्टिक फ्रेज इन इंग्लिश, टेक रिस्क, इफ यू विन यू विल बी हैप्पी, इफ यू लूज यू विल बी वाइज। और गेन जो होता है ना, गेन का डायरेक्ट रिलेशन है, दे आर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द मोर गेन यू विल हैव द मोर रिस्क इफ यू आर टेकिंग। तो ये एज में तो आप ले सकते हैं तो लीजिए, किसने रोका है? आपके साथ एज है, आपके साथ एनर्जी है, एंथुसियाज्म है, सब कुछ है, सिर्फ जरूरत है आपको ज्ञान, अवेयरनेस की। उतना कीजिएगा, आप तैयार है मेरे ख्याल से। नेवर गिव अप, क्योंकि आसान तो हिमा दास के लिए भी था और चानू के लिए था, लेकिन ये दोनों ही हैं जो अगले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिए, कल की न्यूज है। आसान निखिल चोपड़ा के लिए भी
नहीं था, उसको भी बहुत आसानी से वो बोल सकता था कि मैं तो सेकंड ही आऊंगा, क्योंकि जिस कंपिटिटर की बात वो कर रहा है, इंडिया का रिप्रेजेंट जिसने किया था, वो 8 बार उससे बेहतर स्कोर कर चुका था। लेकिन निखिल चोपड़ा लगे थे, स्टेइंग पावर, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, इट हैज पेड फॉर निखिल चोपड़ा। मैं बाहर लोग की बात क्या करूं, हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन काश मैं आपको हंसराज बनिया की भी कहानी बताता। चलिए 16वां उदाहरण दे रहा हूं। कॉन्फिडेंस इज द की। अब कॉन्फिडेंस, लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस, सर कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लगता है, सर नौकरी करने में कॉन्फिडेंस लगता है, सर किसी से बात करने में कॉन्फिडेंस लगता है, सब में कॉन्फिडेंस लगता है भाई। लेकिन कॉन्फिडेंस आता क्या है, कभी कोशिश की है समझने की? तो कॉन्फिडेंस आता सिर्फ एक ही जगह से, और वो है आपका नॉलेज बेस। जितना आपकी ज्ञानता होगी, अज्ञानता से जितना आप कम होंगे। एक बहुत अच्छा लाइन है, मैं किसी एक लाइब्रेरी में, रायसोनी जीएचआरसी के एक पिलर में ये बहुत अच्छा फ्रेज लिखा हुआ है, वहां हर जगह पे फ्रेज लिखा है, उसमें से एक फ्रेज का मतलब बताता हूं मैं आपको। जैसे ही मैंने पढ़ाई की शुरुआत की, तो मालूम पड़ा कि कितना इग्नोरेंट हूं मैं। ये इसके मायने हैं। यानी आप जैसे जैसे पढ़ाई करते, तो मालूम पड़ता है कि आपको बहुत कुछ नहीं मालूम है, और ये एजुकेशन से आता है। तो जो नहीं मालूम है उसे मालूम कीजिए, जो मालूम है उस बात का गर्व कर सकते हैं, घमंड नहीं, क्योंकि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। कॉन्फिडेंस इज द की। नंबर 70, आज के जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लैक करता है, और मैं ये उदाहरण के साथ बता रहा हूं, जो अजीम प्रेम जी कहते हैं, इफ पीपल डोंट लाफ एट योर ड्रीम्स, देन दैट इज नॉट बिग इनफ। मीनिंग, आप बड़ा सोचने से डरते हैं, बड़ा सोचते नहीं है। चलिए 19वें पॉइंट पे चलता हूं। डोंट लीव ट्राइंग आउट थिंग्स बिकॉज ऑफ फेलियर। फेल 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 फेल, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं, तो आप फेल नहीं हो कभी। आप फेलियर या सक्सेस को नहीं टेस्ट कर पाएंगे। एक शायरी है जिसके मायने बड़े सरल है, वो उसी से मैं आपको ये बात रखता हूं आपके सामने में, कि मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी सही, मतलब मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वह हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो फेलियर ये जो है, ये उन लोगों के लिए है जो शायद घर पे रहेंगे, और जैसे लेजी इज बिजी या बिजी इज लेजी, वो कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, कुछ करेंगे नहीं और घर से निकलेंगे भी नहीं। घर से निकलना होगा, धूल धक्का और धूप ये देखना होगा, क्योंकि लाइफ स्किल जो होता है वो यही होता है, वो किताबों के बाहर जो सीखते हैं वो यही सिखाती है। तो ट्राई कीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई कीजिए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। अभी एक इंग्लिश का फ्रेज बोला था, टू अर्न इज ह्यूमन, अर्निंग इज ओके, फेलियर इज ओके, बट डोंट गो टू समथिंग कॉल्ड एज हायर डिग्री, और वो होता है ब्लंडर। ब्लंडर वो चीज होती है जो डिग्री ऑफ ब्लंडर को, अगर मैं देखता हूं, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल थ्योरी में आता है, मैं कुछ थ्योरी अपनी खुद की बनाता हूं, जिसमें यह है कि आपको अर्निंग इज ओके, एरर करो, मिस्टेक तक जाओ, बट ब्लंडर जाओगे तो आपके साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है। शायद आप जागरूक नहीं है, शायद आप अपने उदाहरण से सीख नहीं रहे हैं, शायद आपको किसी दूसरे की मदद लगने वाली है जो आप नहीं पहचानते, आप नहीं ले रहे हैं, इसलिए शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पुश जो है वो अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। और उसी के लिए मैं ये उदाहरण दे रहा था आपको कि फेल 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 होते जाइए आप। क्या कहते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन भी 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए थे। हालांकि ये मिथ्या है, आपको ये नहीं मालूम कि वो सबसे बड़े मार्केटिंग मैन थे, और उनके अंडर में करीब 50 लोग थे, बिजनेसमैन थे वो, और उनमें से किसी एक का आइडिया था जो बल्ब की इजाद करता था। और इलॉन मस्क अभी टेस्ला से ज्यादा नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि टेस्ला ने 300 से ज्यादा पेटेंट किए हैं, लेकिन उनकी मौत हुई एक ऐसे रूम में जहां पर कोई नहीं जानता था, एक होटल के। और वो मानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन वाकई में दिमाग वाले थे, क्योंकि उनको मार्केटेबिलिटी आती है। इसीलिए मैं एक प्रश्न, एक आगाह, एक एक घोषणा करता हूं यहां से, कि जो बच्चा ये जिसको लगता है कि वो मार्केटिंग नहीं करता है या उसे मार्केटिंग में नहीं जाना चाह रहा है, वो मिथ्या है। अपने आप को मार्केटेबल करना बहुत जरूरी है, अपने आप के फीचर, बेनिफिट और एडवांटेज निकालना जरूरी है, क्योंकि यही आपका ब्रांड पिच है, यही आपका ब्रांड इमेज है। चलिए अल्टीमेटली मैं आपको 20वें पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, जो मेरा अंतिम है। वो ये कहता है कि आप बुरी आदत में फंस सकते हैं
यदि आप अननोइंगली वो चीज कर रहे हैं सालों साल। फॉर एग्जाम्पल, चाय की दुकान पे जाना, सुट्टा लेना, टपरी में बैठना, टाइम देखना और कुछ नहीं करना, चॉकलेट खाना और किसी चीज को देखना और नजरअंदाज करना। डू नॉट सीइंग विथ योर नेकेड आईज इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। इसको अच्छी आदत में आप तब्दील कर सकते हैं। किसी भी बात को एक हिंट लगती है, उसके बाद में आप उसको कंज्यूम करते हैं, आप रिवॉर्ड करते हैं अपने आप को। एक छोटी सी मिठाई अगर आपके डाइनिंग टेबल पे रखी है और आप अपने बेडरूम से डाइनिंग रूम में जा रहे हैं, आपको वो दिखती है तो आप क्या करते हैं? खा लेते हैं। और अच्छी आदत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके बेडरूम से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। और अच्छी आदत के लिए यदि आपको कुछ सीखना है तो उसी बेडरूम में शायद आपका गिटार रखा है, उस गिटार को सबसे सामने रखना पड़ेगा और उस गिटार को जिप करके उस कवर में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गिटार आपको बार बार दिखते रहे। So if you are able to maybe find your hand on that guitar, and if you are playing very often, you will become a good guitarist one day. And who knows whether you are coming from what background, but you are still able to make money out of your good habit. लास्ट एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बचपन में हम सबको हमारे माता पिता ने टूथपेस्ट लगाकर टूथब्रश पे हमें वो टीथ क्लीनिंग सिखाया था, करवाया था। उन्होंने डेमो नहीं दिया था, उन्होंने एक्चुअली हमसे एग्जिबिट कराया था। कभी कभी लगता है कि हमें बहुत सारे बच्चों के साथ ये करना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन नहीं है जिसने तमाचा खाया हो, डांट खाया हो, और जो खा रहे हैं वो बहुत इतने ज्यादा ब्रिटल है कि वो सुसाइड करते हैं। आपने दुनिया देखी ही नहीं है और आप इतने कैजुअल है, इतने एग्रेसिव है, इतने वल्नरेबल है। अब तक ये शब्द को संभाल के रखा था मैंने, सिर्फ इसीलिए कि आप वही बच्चे हैं जिनको उसी माता पिता ने वो टूथब्रश करना सिखाया और आज अपने आप से करते हैं। ये बात अलग है, ये विषय अलग है कि आपको आज भी ब्रश करना नहीं आता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि अच्छी आदतों को समय लगता है, बुरी आदतें लग जाती है। और वो हिंदी में गाना है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई। बॉलीवुड में लत बहुत जल्दी लगा देती है और वहीं से बचना है आपको। तो आपके लिए जो सही है वो कीजिएगा। इसके अलावा शायद आप अपना भला चाहते हैं तो आप अच्छी आदतों को आज से शुरू करें, क्योंकि लाइफ बड़ी होती है, करियर बड़ा होता है। रोज इस पे काम करें और स्किल्स पे ध्यान दें, तो शायद आपके लिए मंजिल बहुत आसान है। मगर ये करते वक्त आप सफर को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जर्नी इज ऑलवेज बेटर देन द डेस्टिनेशन। थैंक यू। यहाँ पर हम अपने सेशन के एंड में पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत सारी बातें आपने बताई और पूरा फाउंडेशन आपके लिए बहुत ग्रेटफुल महसूस करता है कि आपने इतना समय दिया और कई सारी बातें इस टाइटल के अंडर में बताई। मेरे ख्याल से जब ये टाइटल पब्लिश हुआ तो इतना क्लियर समझा नहीं होगा। जितेंद्र सर भी बहुत बहुत आभार दे रहे हैं। तो आपने कई सारी पॉजिटिव बातें बताई, एक स्किल सेट के साथ आपने समझाया कि किस तरह से जो पॉजिटिव चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका नेगेटिव यूज होने लगा था और वो टेक्नोलॉजी ही हमें कंज्यूम करने लगी है, स्पेशली टारगेटिंग द यूथ ऑफ द सोसाइटी। तो जो मोटिव विजयलक्ष्मी फाउंडेशन भी चला रहा है कि सभी जेंडर्स के लिए एक अच्छी वर्क प्लेस, एक अच्छा सोशल एटमॉस्फेयर डेवलप होना चाहिए जहाँ पर सभी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ रह सके, उसी को ये चीज भी सपोर्ट करती है जो आप बता रहे थे कि एक सेकंड नेचर डेवलप करने की जरूरत है इस मोमेंट पे, इस टाइम पे, जो कि अगेन कलेक्टिवली सभी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएगा और हमारा और आपका मोटिव साथ साथ चलेगा और साथ में ये एक पॉजिटिव वर्क प्लेस एज वेल एज सोसाइटी तैयार करेगा। So thank you very much sir for all these things which you told us, and ये सेशन जितने लोगों ने अटेंड किया उन सभी को भी बहुत कंटेंटमेंट मिला होगा आपको सुनकर। एंड लास्ट में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि एक अच्छे काम के लिए बहुत से सहयोग की जरूरत होती है और लोगों को साथ में आने की जरूरत होती है। तो आई होप कि इस तरह के कोलैबोरेशन फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर vijayalakshmifoundation.org इस वेबसाइट को विजिट करें और आपका सहयोग किसी एक्टिविटी के रूप में, किसी सहायता के रूप में या आर्थिक मदद के रूप में जरूर हम तक पहुंचाएं। अगेन वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी एंड थैंक यू ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।